Studies now say that almost 1 in 3 Indians may have fatty liver, and many don't even know about it. Fatty liver basically it's the accumulation of fat in the liver. If it is less than 5%, it's okay. When the patient is having more than 5%, then it can lead to a condition called fatty liver. But today we are seeing fatty liver even in non-drinkers, young professionals, even people in their 20s. How is that happening and what's actually causing this rise? All because of unhealthy lifestyle. Processed foods हम लोग इतना खा रहे हैं, आयोडीन कोल्ड ड्रिंक पीना, processed foods का इतना ज़्यादा अवेलेबल होना. So sir, another challenge is that people often ignore very subtle symptoms. What are some early warning signs? आइडियली आपको HGPT एक जो मार्कर होता है लिवर का वो कराना चाहिए. एक बार आपका लिवर में सूजन आ गई तब आपका HGPT पड़ना स्टार्ट होता है. कौन से ग्रेड का अगर फैटी लिवर USG में फाइंड आउट होता है तो मुझे और स्कैन करना चाहिए? अब ग्रेड 1 है तो यू कैन जस्ट फोकस ऑन लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन. पर ग्रेड 2 ऑनवर्ड्स है तो आपको एक बार फाइब्रो स्कैन करा के देख लेना चाहिए क्योंकि कभी कभी एडवांस फाइब्रोसिस हो जाती है. Because many people think diagnosis means some complicated procedure. But if awareness increases, early detection is very much possible. You can prevent a future disease. Since I come from Gujarat, we are seeing this cultural change. So क्या होता था? Now you have pickleball, turf for box cricket, which is running 24/7. So अभी typically cultural change ऐसा है कि एंड ऑफ द डे यू कॉल सम फ्रेंड्स कि चलो रात को चाय पीने जाते हैं, फिर कुछ खाना हो जाता था. तो अभी हम लोग जब मिलते हैं तो वी ऑलवेज मेक श्योर कि ओके लेट अस प्ले सम क्रिकेट टुगेदर और कुछ पिकल बॉल खेल लेते हैं. तो एटलीस्ट देयर इज सम एक्टिविटी विच इज हैपनिंग and we are not eating and just putting but in that should not come on the sugar. मतलब sleep pattern भी आपका प्रॉपर होना चाहिए. I agree. 7 hours sleep should be there. ये नहीं कि रात को 2 बजे तक खेल रहे. वो भी there. That is the flip side of it. Any particular link which people It's are all missing? a part of metabolic dysfunction. उसमें इंसुलिन रेजिस्टेंस होगा, मोटापा जितना ज़्यादा होगा विजिबल एडिपोसिटी होगी, उससे इंसुलिन रेजिस्टेंस होगा. इंसुलिन रेजिस्टेंस होगा तो आपको डायबिटीज़, कोलेस्ट्रॉल बढ़ना, ओबेसिटी, ये आपका फैटी लिवर होना, ये सब. फैटी लिवर होगा तो आपको कार्डियो मेटाबॉलिक रिस्क फैक्टर बढ़ेगा, हार्ट अटैक होने का चांस बढ़ेगा. मतलब सब कुछ मेनली ओबेसिटी इज अ डीप रूट कॉज ऑफ एवरीथिंग. Hello everyone and welcome to another insightful episode of ASCA Virtue Podcast, where we bring science, clinical wisdom and real world healthcare conversations together for doctors, patients and caregivers alike. When we hear liver disease, most immediately we think, oh, alcohol problem hoga. But what if I tell you thousands of people who don't even drink are silently developing fatty liver? And the scary part, most people don't even know about it. Today, we are talking about the connection between fatty liver, diabetes, obesity, heart disease, stress, and urban lifestyle. Basically, the entire cardiometabolic storm happening around us. And to help us understand all this in a simple and a very practical way, we have with us an incredibly accomplished specialist from Medanta Hospital, Lucknow, Dr. Himanshu Gupta. Thanks. Sir has expertise in fatty liver disease, liver failure, viral hepatitis, liver transplant care, and advanced liver disorders. Sir, welcome to this podcast. This is the topic, sir, what we have taken today is a bit different. I think हम लोगों ने काफ़ी सुना हुआ है इसके बारे में, बट किसी को भी उसके बारे में पूरी तरह से पता नहीं है. So I think we are very grateful that you have spared time for joining us for this conversation. And I am very sure कि ये जो conversation लोगों तक पहुँचेगा, it will help thousands of people. And I think you are absolutely the right person. So sir, thank you so much for joining. Thanks. So sir, I'll dive in right into the first question. Let's start with basics. What exactly the term fatty liver means? Fatty liver basically it's the accumulation of fat in the liver. Usually the liver is having fat, but it is in some certain limit. If it is less than 5%, it's okay. But when the patient is having more than 5%, then it can lead to a condition called fatty liver. And it's have various grades also. That fatty liver, then it will develop into steatohepatitis, then fibrosis, then cirrhosis. Depending on the accumulation of fat, it progresses the condition. Okay. So I think that you are very much simplified. So basically, मोटा अगर मैं मोटा देखे तो the fat
around the liver हाँ is considered as ऐसा fatty फैटी लिवर liver. लिवर Okay. में जो फैट इकट्ठा होना उसी को हम्म। फैटी लिवर कहते हैं Okay. और हाँ उसके ग्रेड्स अभी अलग हाँ अलग उसके अलग से ग्रेड्स रहेंगे. होते हैं Okay. So studies now say that almost 1 in 3 Indians may have fatty फैटी liver, लिवर and many don't even know about it. Why is fatty liver called a silent disease, and how dangerous is this silence? दिस बेसिकली इट इज़ अ साइलेंट डिजीज़ क्योंकि जब तक ये एडवांस ना हो स्टेज तब तक ये सिम्टम्स नहीं आते पेशेंट को बेसिकली बहुत बेग सिम्टम्स रहते हैं पेट भारी होना मतलब जैसे गैस होना लोगों को लगता है कि गैस हो रही है उसको वो कंफ्यूज करते हैं कि गैस से और जनरली और अनटिल अनलेस पेशेंट को एडवांस डिजीज़ ना हो पेशेंट यूजुअली सिम्टम्स नहीं होते हैं बट सम पेशेंट्स कैन हैव मतलब उसको राइट अपर क्वाड्रेंट में यहाँ उसको भारीपन लग सकता है पेट ब्लोटेड फील हो सकता है थकान महसूस हो सकती है ये सब हो सकते हैं पर ज़रूरी नहीं पर ये सब हुए हैं पेशेंट्स को तो पेशेंट को इवेलुएट करना चाहिए Okay. और यार बैकग्राउंड में पेशेंट को डायबिटीज़ है कोलेस्ट्रॉल है हाई ट्राइग्लिसराइड्स बढ़े हुए हैं बीपी है या फैमिली हिस्ट्री है तो उनको तो ज़रूर मतलब बेसिकली दे शुड गेट इवेलुएटेड फॉर फैटी लिवर Okay. Okay. So, so what you are saying is कि ज़्यादा ऐसे कुछ symptoms आएंगे नहीं unless नहीं। it has reached advanced stage, advanced हाँ। stage. And people who already have history हाँ। regarding cardiac. फैमिली हिस्ट्री और पेशेंट इज हैविंग द ओबेसिटी डायबिटीज हाइपरटेंशन हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल्स दे शुड बी इवैल्यूएटेड दे शुड गेट इवैल्यूएटेड Okay. So usually सर लीवर जब भी हम सुनते हैं तो फर्स्ट थिंग कम्स टू माइंड इज अल्कोहल. सो ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, इज नहीं, व्हाट आई लिवर खराब होने के मुख्य कारण क्या होते हैं आपके दारू पीना उसके अलावा और भी कारण होते हैं मोटापा अनकंट्रोल डायबिटीज अनकंट्रोल कोलेस्ट्रॉल इसके अलावा कुछ वायरसेस होते हैं हेपेटाइटिस बी और सी तो हर चीज़ प्रिवेंटेबल है एक्सेप्ट कि मतलब अनटिल अनलेस पेशेंट एडवांस स्टेज में ना पहुंच जाए Okay, okay. So I think that honestly is very scary when you think about it, because we usually assume that if something serious is happening inside the body will always warn us, when that too very loudly. But here the liver is basically suffering to a good extent and all silently happening. So I think that is something. क्योंकि लिवर एक ऐसा ऑर्गन है इसकी रीजेनरेटिव कैपेसिटी बहुत अच्छी होती है Oh, मतलब हल्का हल्का थोड़ा आप इंसल्ट भी हो रहा है पेशेंट को एक्यूट इंसल्ट हो रहा है जैसे आप हमने ज़्यादा शुगरी ड्रिंक्स ली ज़्यादा प्रोसेस फूड खाया तो और हम उसको एक टाइम स्पेंड के लिए छोड़ भी देते हैं तो रीजनरेट कर जाता है लिवर अच्छा. हाँ Okay. तो इट्स डिपेंड ऑन द लाइफ स्टाइल बेसिकली इट्स अ लाइफ स्टाइल डिजीज फैटी लिवर And that is one of, I think, जो good part है that it regenerates is also the flip side is कि वो silently आगे हाँ progress कर साइलेंटली जाता है और हमें दैट्स वाई मतलब फर्स्ट वो जो भी इस पे टॉक्सिन्स का इंसल्ट कहीं लिवर का काम ही क्या है टॉक्सिन्स को हटाना right. तो जनरली वो अपना काम करता रहता है बट अब ज़रूरत से ज़्यादा एक लिमिट के बाहर आप अनहेल्दी लाइफस्टाइल रखेंगे तो लिवर के काम तो सफ़र होगा ही होगा तो उस समय उसके बाद जाके एक लिमिट के बाद तब जाके लिवर डिजेनरेट होना स्टार्ट करता है Okay, that's interesting. Sir, I also think one of the biggest misconceptions people still have is fatty liver मतलब alcohol जो मैंने कहा. If someone doesn't drink, they assume they are automatically safe. अगर मेरी lifestyle अच्छी है, if I'm not drinking, तो मेरा liver पूरा safe है, कुछ नहीं हो सकता है. But today we are seeing fatty liver even in non-drinkers, young professionals, even people in their 20s. How is that happening and what's actually causing this rise? दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ अनहेल्दी लाइफस्टाइल एज प्रोसेस्ड फूड्स हम लोग इतना खा रहे हैं आइडिन कोल्ड ड्रिंक पीना हर मतलब कुछ ना कुछ खा मतलब इवन अपार्ट फ्रॉम लंच इन बिटवीन टाइम वी आर टेकिंग सम स्नैक्स दैट इज अनहेल्दी ओनली प्रोसेस्ड फूड्स का इतना ज़्यादा अवेलेबल होना अनहेल्दी लाइफस्टाइल बेसिकली सीडेंटरी लाइफस्टाइल होती है कोई आजकल ज़्यादा एक्टिविटी तो होती नहीं है घर में ऑफिस में बैठ के काम करते रहना Okay. मूवमेंट कम होता है उसके कारण स्लीप पैटर्न पूरा ना होना आइडियली 7 आवर्स स्लीप होना चाहिए लेट नाइट खाना आइडिन पार्टीज होना दैट इज़ वन ऑफ द फैक्टर Okay, okay. So, so actually जो lifestyle हम लोग जी रहे हैं, which is becoming very common, is so much scary, I think. मतलब जो आप कह रहे हैं. इसके कारण मेटाबॉलिक सिंड्रोम होता है बेसिकली इट्स अ मेटाबॉलिक सिंड्रोम एसोसिएटेड लिवर डिसफंक्शन Okay. इसके अकाउंट मतलब आपको ऐसा नहीं कि सिर्फ फैटी लिवर है तो और चीज़ें नहीं हो फैटी लिवर शुगर डायबिटीज़ कोलेस्ट्रॉल बीपी ये सब एक साथ ही मतलब आपस में इंटरकनेक्टेड है Okay. एक चीज़ हो रही तो दूसरे का रिस्क फैक्टर अपने आप में बढ़ जाता है
ओके, सो सारे जो कार्डियो मेटाबॉलिक हाँ रिलेटेड रिसेप्टर्स इश्यूज हाँ हो सकते हैं कैन एक्चुअली लीड टू फैटी फैटी लिवर लिवर और liver या disease. And you know, sir, honestly, our generation has normalized this दिस lifestyle लाइफस्टाइल जो इतना अनहेल्दी है, वो इतना वेस्टर्न नॉर्मलाइज हो हाँ गया है कि sleeping at 2 a.m., eating while watching, you know, Netflix, coffee replacing water, हाँ stress replacing your personality. I think everything ultimately boils down to something growing silently, which is a liver disease. Okay. So absolutely वो हमें normalize नहीं करना चाहिए. And I think all this should start right from the very early age, is what we feel. आजकल मतलब बेबीज ही मतलब स्टार्ट उनका इतना अनहेल्दी ले लोग मतलब घर का खाना ही नहीं खाते हैं So इवन true, बच्चे भी so मतलब true. सबका मतलब चिप्स चाहिए कुरकुरे चाहिए मैगी हाँ, चाहिए so true. I think people are stress eating करके भी एक या चीज़ अभी आ हाँ गई या है. So I think स्ट्रेस because of the stress that they are facing, end of the day, you know, they want to satisfy the taste buds. और taste buds के लिए now everything is हेल्दी खाना किसी को अच्छा नहीं लगता exactly, exactly. And I think which is so dangerous. और हम लोग इसको इतना lightly लेते हैं. The lifestyle that we are living in early 20s and 30s, I think later इट age विल में लीड it टू will हाँ affect very, very badly. So, sir, now whenever people hear the word fatty liver, immediately panic starts. कि you know ये क्या हो गया, अब क्या होगा, लाइफ टाइम मेडिसिन खाना पड़ेगा. So let's clear this fear properly. Is fatty liver reversible, or once it develops, it is a permanent damage done? नो इट्स अ रिवर्सिबल कंटेंट until unless it leads to advanced stages that is cirrhosis Okay. तो इट्स अब डिपेंडिंग आफ्टर जब आपको फैटी लिवर आपको पता चलता है तो इसके बाद आपको लाइफस्टाइल मॉडिफाई करना चाहिए यूज मतलब ब्लैक कॉफ़ी पीना चाहिए ब्लैक कॉफ़ी से लिवर का जो फैट है वो पिघलता है Mm-hmm. और सबसे ज़्यादा हेल्दी होते हैं लिवर के लिए इसके Okay. अलावा आपको टर्मरिक वगैरह यूज़ करना चाहिए जैसे इंडियन हाँ Anti-inflammatory. या एंटी Okay. इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होती हैं इसके Hmm. अलावा आपको बेसिकली एंटीऑक्सीडेंट रिच फूड खाना चाहिए लाइक बीट रूट ब्रोकोली अदर मतलब जो नेचुरल फूड है उस पर ज़्यादा Um, फोकस करना चाहिए okay. तो बेसिकली आपको 3 चीज़ें करनी है कि लिमिट में खाएं कभी भी पेट भर के ना खाएं Right. लेट नाइट मील्स अवॉइड करें इवन Hmm. आफ्टर मतलब आफ्टर सनसेट अवॉइड द ईटिंग फूड ओके Hmm. इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं कि नेचुरल फॉर्म में ट्राई करें जैसे आपको वेजिटेबल्स पे ज़्यादा फोकस करें डीप फ्राइड फूड ना खाएं प्रोसेस फूड ना खाएं Okay. ये इससे तो आपका रिवर्स कर सकते हैं मतलब Okay. आपने आप जैसे आप दारू पीते हैं तो दारू पीना छोड़ना पड़ेगा Hmm. और अनटिल अनलेस और हेपेटाइटिस बी और सी के कारण तो हेपेटाइटिस बी के कारण तो हम एंटीवायरल दे सकते हैं Hmm. उसको प्रोग्रेशन को रोक सकते हैं पर Hmm. जो आपका नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ है या आपका अल्कोहलिक लिवर डिजीज है दैट इज़ कम्प्लीटली रिवर्सेबल ओके. तो सर आपको सुन के मुझे ये भी लग रहा है कि यू नो बड़े बुजुर्ग ने शायद साइंस नहीं पढ़ा होगा, बट उनका जो लाइफस्टाइल जो हमें पहले से कहते आ रहे थे कि कैसी लाइफस्टाइल होनी चाहिए, जल्दी सोना चाहिए, स्लीप प्रॉपर होना चाहिए, खाने में जो आपने कहा कि हल्दी हैज़ टू बी अ पार्ट ऑफ इट, जल्दी खा लेना जल्दी खा चाहिए. लेना चाहिए सो आई थिंक ऑल ऑफ दैट क्योंकि लिवर को भी रेस्ट करने का मौका Exactly. देंगे तभी तो वो रीजनरेट करेगा So आप true. लेट नाइट खाएंगे फिर लिवर भी को भी काम करना है तो वी शुड गिव टाइम टू लिवर टू रीजनरेट टू डू हिज वर्क एंड रेस्ट Okay, okay. So any lifestyle diseases, you know, feel overwhelming. But good part is body also has an incredible ability to recover. You know, if we intervene early. So जैसा आपने कहा कि you know for every machine you should give a resting Rest, time. I think every organ also it Needs a stays rest. true. So liver is almost like that forgiving friend. It tolerates a lot, but only up to a certain up to a point. certain उसके point. बाद तो वो भी उसके शायद नहीं वो करेगा. भी हाथ And I खड़े कर देगा कि अब नहीं हो पाएगा very true, very true. And I think ये चीज़ का जैसे एक दोस्त का भी गलत फायदा नहीं हाँ। उठाना चाहिए, हमें हमारी बॉडी के ऑर्गन्स का भी नहीं उठाना चाहिए. इस मैसेज आई. पर लोग आजकल कुछ ना कुछ अभी लंच किया उसके 2 घंटे और चाय पी ली हाँ. समोसा खा लिया So true. तो वो अननेसेसरी नहीं खाना चाहिए Very true, very true. So, sir, another challenge is that people often ignore very subtle symptoms. What are some early warning signs people are usually ignoring? I'm sure you must be getting such cases day in and day out. That could actually, you know, indicate fatty liver or a metabolic trouble which is already happening. But हम लोग भी थोड़ा lightly ले लेते हैं कि ये ठीक है, ये अगर कुछ सिम्टम है तो कुछ बड़ा नहीं होगा, बट हमें आइडियली उसको अवॉइड नहीं करना चाहिए. सो व्हाट इज इट अकॉर्डिंग टू यू?
पेट में भारीपन होना, या मतलब आपको लग रहा है कि पेट में राइट अपर क्वाड्रेंट में कुछ मतलब एब्डोमिनल मतलब कुछ डिस्कम्फर्ट हो रहा है वो, या फिर यहाँ गर्दन पे या गले पे काली निशान आना, मस्से होना अच्छा। बॉडी में, दिस ऑल डिनोट्स कि सम इन्फ्लेमेशन इज गोइंग ऑन इन द बॉडी। ओह, ओके। तो ये सब आपका मतलब फ्यूचर में जाके इसको, जैसे ही गले में जो कालापन होता है, तो आइडियली आपको अपना टेस्टिंग कराना चाहिए कि आपका लिवर कैसा है, आपका कोलेस्ट्रॉल कैसा है। ये ओके। अर्ली साइंस हो सकते हैं, बट यूजुअली लोग इस पर फोकस नहीं करते हैं। ओके। तो सर आप जब कहते हैं कि टेस्ट हाँ। कराना चाहिए, so what are the tests actually we should go through? आइडियली आपको एचजीपीटी एक जो मार्कर होता है लिवर का, वो कराना चाहिए, और वो आपका रेज आता है। यूजुअली फैटी लिवर अर्ली है या मतलब माइल्ड है तो इसमें नॉर्मल भी आ सकता है, और अच्छा। इन्फ्लेमेशन नहीं ज़्यादा नहीं है, आपको स्टीटोहेपेटाइटिस वाली कंडीशन नहीं आई। ओके। स्टीटोसिस में तो आपको अल्ट्रासाउंड फाइब्रो स्कैन ये कराना पड़ेगा, तो आपको पता चलेगा फैटी लिवर है। एक ओके। बार आपका लिवर में सूजन आ गई, तब आपका एचजीपीटी पढ़ना स्टार्ट होता है। ओह। तो वो सेकंड स्टेज में जाके एचजीपीटी पढ़ना स्टार्ट होता है। तो अर्ली टेस्ट तो आपको फाइब्रो स्कैन जो मोर रिलायबल है एज कम्पेयर टू अल्ट्रासाउंड। और फाइब्रो स्कैन में आपका पता चलता है कि लिवर में फैट है, स्कारिंग है या नहीं है। अच्छा। अल्ट्रासाउंड में सिर्फ फैट पता चलता है कि लिवर में फैट है या नहीं। तो यूजुअली फ्रीक्वेंसी क्या होना चाहिए अगर somebody in their 30s or maybe 40s like us, where you become very conscious about health, now you are entering the next phase of your life, so what should be the frequency of these tests? टेस्टिंग। और आपको फैमिली हिस्ट्री है कि आपके पेरेंट्स को डायबिटीज़ है, या आपकी फैमिली हिस्ट्री कोई कैंसर की है, कोलेस्ट्रॉल की है, तो उनको हर 6 मंथ्स में या 1 ईयरली करा लेना चाहिए। अदरवाइज़ आपकी कोई फैमिली हिस्ट्री नहीं, आप हेल्दी लाइफ स्टाइल है, आपको मतलब कोई अल्कोहल वगैरह नहीं लेते हैं, आप पूरा अपना लाइफ स्टाइल फॉलो करते हैं, तो वंस इन 2-3 years इट्स सफिशिएंट। It is sufficient. बट इफ देयर इज अ हाई रिस्क, लाइक आपके फैमिली में या आप ही को खुद को कोलेस्ट्रॉल है, डायबिटीज़ है, तो हर 6 महीने से 1 साल में आपको टेस्टिंग करा लेना चाहिए। Okay. या आपको कोई भी सिम्टम्स ऐसा हो रहा है कि या गले में कालापन आ रहा है, मस्से हो रहे हैं, या पेट भारी भारी लगता है, तब Okay. उस पे कंफ्यूज नहीं करना कि आपको हमेशा गैस हो रहा है और माइंड गैस की हाँ, गोली खाई और सब सही है। so true. Self diagnose हाँ, सेल्फ नहीं डायग्नोज करना है. शुड। I think sir वही actually that is the biggest problem and especially with Indian patients. I think जो एक ignorance है कि मुझे अगर शायद कुछ आ गया तो इग्नोरेंस और टाइम भी नहीं देते हैं अपनी हेल्थ के लिए। very true. आपको अपनी हेल्थ के लिए टाइम नहीं देंगे तो हेल्थ इज लाइक आल्सो अ प्रॉपर्टी, So true. So true. यू हैव टू इन्वेस्ट इन दैट, Exactly. अदरवाइज इट विल बी मतलब यू विल गो इन लॉस। So sir, I was also listening to someone, that hit me very hard. कि you will have 1,000 problems in your life, but once one health problem comes in, you will have only one problem in life. So I think जो कह दैट इज के गए है कि फिर सारा फोकस हेल्थ की तरफ हेल्थ ही की आ जाएगा. हेल्थ, So why to reach that level and not make sure that we should take वी care शुड and फोकस get इन it इवन छोटी checked, छोटी प्रॉब्लम, इसको फोकस address करना है, करें. इसको इग्नोर नहीं करना है। सो ट्रू, सो ट्रू. फिर जो इंडियन लोग हैं सर, आर एक्सपर्ट्स एट सेल्फ डायग्नोसिस. गैस होगा जैसा आपने कहा कि वेदर चेंज है, विटामिन की डेफिशिएंसी होगी, सब लोग कोई अपने अगर आप में ही डॉक्टर हैं। हाँ आज पार्क पे चलने भी गए तो लोग आपको हाँ, ऐसे ही कुछ ना एडवाइस, कुछ फ्री की हेल्थ एडवाइस। एडवाइस दे जाएंगे विदाउट अंडरस्टैंडिंग कि एक्चुअली डीप रूटेड कॉज कितना बड़ा हो सकता है. So, sir, can fatty liver be detected through simple blood test or scans? And या do most cases still go unnoticed in routine health checkups? Yeah, LFT is one of the parameter in Okay. blood test. Apart Um, from that, we can do ultrasound, fiber scan, और if risk factors like triglyceride बढ़ा होता है लिवर पेशेंट्स में, फैटी लिवर में, उसके तो दिस आर ट्राइग्लिसराइड बढ़ना, बीपी बढ़ना, बेस स्लीप रेशियो, okay. आपका बीएमआई बढ़ा हुआ होना, जिस इनडायरेक्टली मतलब आपको हो सकता है कि फैटी लिवर हो, इनडायरेक्टली से कि आपको फैटी लिवर हो सकता है। आपका अनकंट्रोल डायबिटीज़ है तो उसको इवैल्यूएट करना चाहिए कि उसमें फैटी लिवर होने के चांस हैं, या फैमिली हिस्ट्री हो ये। तो सर आपने जैसे कहा कि SGPT SGOT हाँ, जब हम टेस्ट करते हैं, लिवर मतलब फंक्शन ऑल टेस्ट। हाँ, लीवर फंक्शन टेस्ट, वो यूजुअली लेटर स्टेज में डिटेक्ट होता है. हाँ, सो मतलब स्कैन्स आर द ओनली. दैट इज फैटी लिवर की 4 मतलब लिवर खराब होने की 4 स्टेज होती हैं। पहले फैट लिवर में फैट इकट्ठा स्टार्ट होगा, ओके. फिर इसके बाद स्टीटोहेपेटाइटिस मतलब लिवर में सूजन आएगा जिसमें एचजीपीटी बढ़ेगा, उसके बाद आता है फाइब्रोसिस, उसके बाद आता है एडवांस फाइब्रोसिस, वो दैट इज सिरोसिस आफ्टर ओके. दैट। और उसके बाद भी कंट्रोल नहीं हुआ, प्रॉब्लम मतलब है तो कैंसर भी बना सकता है लिवर का। ओह, ओके. तो सर जैसे हम लोग फॉर एग्जांपल कोलेस्ट्रॉल हम्म है तो उसके लिए हमारा
ट्राइग्लिसराइड कोलेस्ट्रॉल लिपिड पूरा पैनल, प्रोफाइल हाँ। पूरा फिक्स है कि उसे पता चल जाता है। हाँ। सिमिलरली फॉर लीवर अगर हमें देखना है तो इज यूएसजी जो अल्ट्रासाउंड अर्ली आपका, स्टेज में मुझे डिटेक्ट करना है या तो अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन, दैट्स वाई मतलब पीपल इंसिडेंटली अब रूटीन चेकअप कराने गए तब लोगों को पता चला फैटी लीवर है, वैसे पता नहीं चलता क्योंकि राइट सिम्टम्स है ही नहीं जनरली। 90% पेशेंट्स में कोई सिम्टम्स होता ही नहीं है अनटिल अनलेस वो एडवांस स्टेज में ना पहुंचे। और अल्ट्रासाउंड में आपको फैटी लिवर आए तो आपको फाइबर स्कैन करा के देखना चाहिए कि आपका लिवर में सिर्फ फैट है या फाइब्रोसिस तो स्टार्ट नहीं हो गया। अच्छा उसमें फाइब्रोसिस का भी पता चलता है एडिशनल, आप मतलब अल्ट्रासाउंड में जो आपको सिर्फ फैट का पता फैट चलेगा, फाइबर स्कैन में दोनों चीज़ का पता चलेगा कि फैट भी है फाइब्रोसिस है या नहीं। ओके सो सर कौन से ग्रेड का अगर फैटी लिवर यूएसजी में हम्म। फाइंड आउट होता है तो मुझे और स्कैन करना चाहिए आगे कि हम्म। ऐसा कुछ नहीं है कि करना ही चाहिए अगर फैटी नहीं, लिवर ग्रेड है 1 तो है तो यू कैन जस्ट फोकस ऑन लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। ओके पर ग्रेड 2 ऑनवर्ड्स है तो आपको एक बार फाइबर स्कैन करा के देख लेना चाहिए क्योंकि कभी कभी एडवांस फाइब्रोसिस हो जाती है तो आपको अल्ट्रासाउंड में क्या, अल्ट्रासाउंड इज एन ऑब्जेक्टिव, मतलब आपको पता नहीं चलेगा कि कभी अब आजकल क्या है, आपको टेक्नीशियन भी अल्ट्रासाउंड कर रहे हैं तो आपको पता नहीं कि किसने कैसे अल्ट्रासाउंड किया। राइट राइट दैट्स वाई ओके आपको लिवर का एवोल्यूशन करना है तो LFT, कोलेस्ट्रॉल, LFT आपका फास्टिंग लिपिड प्रोफाइल, HbA1c, हेपेटाइटिस B C, अल्ट्रासाउंड, फाइबर स्कैन, ये सब करा के देखना चाहिए एक बार अल्ट्रासाउंड में फैटी लिवर आ गया है तो। सर आपकी बात से मैं पर्सनली एक Yeah. बात ये सीखा हूँ आज कि यू सो आई हैव अ यू नो वेरी स्ट्रॉन्ग कार्डियक हिस्ट्री इन द फैमिली सो हम लोग एक रूटीनली यू नो वी गेट सर्टन थिंग्स चेक कि इसमें लिपिड प्रोफाइल हो गया डायबिटीज़ HbA1c हो गया किडनी फंक्शन टेस्ट हो गया लीवर फंक्शन टेस्ट हो गया बट आई थिंक लिसनिंग टू अल्ट्रासाउंड नहीं यू किया। आई रियली फील के इसमें मुझे एक नहीं, फैटी लिवर में LFT नॉर्मल हो सकता हाँ है, इसलिए एग्जैक्टली आपको एक बार अल्ट्रासाउंड करा के दें, आपको फैमिली हिस्ट्री है तो वंस अ ईयर अल्ट्रासाउंड शुड बी डन। ओके सो आई थिंक अभी मतलब हमारे जो रूटीन बॉडी प्रोफाइल होते हैं उसमें एक यूएसजी ऐड कर ही हाँ, देना चाहिए या एंड आई थिंक जिस हिसाब से लाइफस्टाइल है उसमें तो करना ही चाहिए। आई अग्री आई कंप्लीटली अग्री एंड आई थिंक मोस्ट ऑफ पीपल यू नो विल बी मेकिंग दिस मिस्टेक कि हमें लग रहा है कि हम लोग LFT नॉर्मल है, सब कुछ हाँ नॉर्मल है। एग्जैक्टली बट विच इज़ नॉट ट्रू हाँ। okay so at least I have this learning which I'll take home for sure so that's actually reassuring you know because many people think you know diagnosis means some complicated procedure Yeah. but if awareness increases early detection is Early detection is very much you can possible prevent a future disease. so true so sir let's make this very actionable now suppose someone is watching this episode today and realizes that you know maybe I do have fatty liver uh, what are the first three things they should immediately start doing from tomorrow morning itself एडिक्वेट स्लीप, हेल्दी लाइफस्टाइल, मतलब आपको प्रॉपरली फोकस करिए कि हेल्दी खाना खाना है, डीप फ्राई फूड नहीं खाना, समोसे कचौड़ी ये सब अवॉइड करना पड़ेगा, right लिमिट में खाना पड़ेगा। आपको 4 रोटी की भूख है तो 2 रोटी खाइए, कभी भी पेट भर के नहीं खाइए, okay ठीक है, पेट भर के नहीं खाइए। लेट इवनिंग मील्स अवॉइड करिए, ब्लैक कॉफ़ी पे फोकस करिए, एटलीस्ट एक कप दिन में कॉफ़ी, ब्लैक कॉफ़ी पीना चाहिए, वो भी विदाउट शुगर। ये नहीं कि ब्लैक कॉफ़ी बोल दिया तो उसमें शुगर डाल के पी रहे हैं, right फिर तो कोई ब्लैक मतलब कॉफ़ी नहीं विदाउट शुगर पीना चाहिए। okay इसके अलावा लाइफस्टाइल हो ही गया, इसके अलावा आपको ड्रिंक करते तो वो अवॉइड करना चाहिए। डेली आधे घंटे एक्सरसाइज करना चाहिए क्योंकि मतलब आपका सिर्फ खाने के अलावा एक्सरसाइज भी बहुत ज़रूरी है। ओके एंड आई थिंक सर जो आपने कहा वो समवेयर डीप डाउन हमें पता है बट कहीं ना कहीं वो focus नहीं, हाँ, इम्प्लीमेंटेशन implementation नहीं कर नहीं हो पाते। पा रहा बट आई टेल यू वेरी इंटरेस्टिंग थिंग देयर इज अ टिपिकल कल्चरल चेंज वी आर सीइंग since I come from Gujarat we are seeing this cultural change so क्या होता था you know now you have pickleball turf for box cricket which is running 24/7 so अभी typically cultural change ऐसा है कि एंड ऑफ द डे यू नो यू कॉल सम फ्रेंड्स कि चलो रात को चाय पी ले जाते हैं फिर कुछ खाना हो जाता था तो अभी हम लोग जब मिलते हैं तो वी ऑलवेज मेक श्योर कि ओके लेट अस प्ले सम क्रिकेट टुगेदर और कुछ पिकल बॉल खेल लेते तो एटलीस्ट देर इज सम एक्टिविटीज activity which is happening and we are not you know eating and just putting बट in दैट शुड नॉट कम unnecessary ऑन द, sugar मतलब स्लीप पैटर्न भी आपका प्रॉपर होना चाहिए। I agree 7 आवर rest स्लीप शुड बी देयर, ये नहीं कि रात को 2 बजे तक खेल रहे। वो भी जरूरी that वो is भी the जरूरी है। flip side of हाँ। it I agree but I think earlier around 9 to 10 10 to 11
I think that is a Ideally you should go to sleep by 10 and morning में आपको 5-6 बजे तक तो उठ जाना चाहिए. yeah, right. 7 to 8 hours sleep is enough. Okay, so that is equally important for Yeah. liver health. Yeah. Okay, You should give rest to body ना. so true. Very Otherwise true. And I think rest ऐसी चीज़ है बहुत ही underrated है अभी underrated भी. है. Yeah, right. So I really liked, आपने जैसे practical advice दिया, because people often get, overwhelmed with complicated health plans जो usually doctors देते हैं. But I think people listening to you will surely be able to, break down into smaller things and धीरे धीरे ही मतलब very आपको आदत practical. लगेगा. आपको एक दिन हाँ. आपको कॉफ़ी कड़वी लगेगी, पर थोड़ा थोड़ा आधे कप से स्टार्ट करिए, 2 चम्मच से स्टार्ट करिए, पर Right. ग्रेजुअली यू डेवलप उसका आपको टेस्ट अच्छा लगने लगेगा. Right. कोई भी चीज़ मतलब नया स्टार्ट करने टाइम तो लगता ही है. So true. मतलब एवरी हैबिट यूजुअली टेक 20 to 21 days to डेवलप. Very true. And I think जो भी हैबिट हम लोग फॉर्म होती है तो इट इज सस्टेनेबल. या वरना ऐसा ही होता है कि ऑन एवरी आज फर्स्ट लिया ऑफ फिर जनवरी पूरे जिम हाँ. फुल होता है, फिर एक विद इन महीने बाद एक महीने बाद सब खाली. आई एग्री. तो जो भी हम लोग लाइफस्टाइल चेंज हाँ. करें, वी हैव टू मेक श्योर दैट इट इज चाहे हम वेरी थोड़ा थोड़ा सस्टेनेबल. करें पर ऐसा करें कि सस्टेनेबल हो लॉन्ग टर्म पे. वेरी ट्रू, वेरी ट्रू. जैसे जैन लोग आज भी मतलब 6-7 बजे के बाद खाना नहीं खाते, तो उनका कितना अच्छा लाइफस्टाइल है. Right, absolutely. So, sir, one thing that surprises many people is connection between organs. People think liver disease is separate, diabetes is separate, heart disease is separate. But medically, how deeply connected is fatty liver, diabetes, obesity, and heart disease? I think you have touched a few points around it, but if you can elaborate that any particular link which people इट्स are ऑल अ missing. पार्ट ऑफ मेटाबॉलिक डिसफंक्शन. उसमें इंसुलिन रेजिस्टेंस होगा, मोटापा जितना ज़्यादा होगा, विसरल ओबेसिटी, विसरल एडिपोसिटी होगी, उससे इंसुलिन रेजिस्टेंस होगा. इंसुलिन रेजिस्टेंस होगा तो आपको डायबिटीज़, कोलेस्ट्रॉल बढ़ना, ओबेसिटी, ये आपका फैटी लिवर होना, ये सब. फैटी लिवर होगा तो आपको कार्डियो मेटाबॉलिक रिस्क फैक्टर बढ़ेगा, हार्ट अटैक होने का चांस बढ़ेगा, मोटापा, मतलब सब कुछ. मेनली ओबेसिटी सा डीप रूट कॉज ऑफ एवरीथिंग. मोटापा अवॉइड करना है. Okay. So everything is interconnected. Okay. And sir, one thing I would also like to ask you that हम लोग ये भी सुनते हैं कि for every disease you have some medicines available. हाँ. But I think for liver there are least number of medicines which are available. Is it really true? मतलब पेशेंट को एडवांस डिजीज हो जाएगा तो मेडिसिन अवेलेबल हैं. इट्स बट जो आजकल लोग लिवर टोनिक, लिवर लिव 52 खा लेते हैं, इट्स वेरी मतलब इट्स डेंजरस टू द लिवर. Oh. इट्स नहीं कि लोग आजकल कहते हैं कि लिवर डिटॉक्स कर लीजिए. लिवर डिटॉक्स की जरूरत ही नहीं. लिवर अपने आप में सेल्फ कैपेबल है डिटॉक्स है. इसका काम ही वही है, लिवर के टॉक्सिन्स हटाना, मतलब बॉडी की टॉक्सिन्स हटाना. Okay. बट देयर इज नथिंग लाइक लिवर डिटॉक्स और लिवर टॉनिक्स. इससे कोई फ़ायदा नहीं होता बल्कि नुकसान करते हैं लिवर को. अब बहुत सी अच्छा. स्टडी में पाया गया है, कुछ आयुर्वेदिक मेडिसिन, कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन, और आपका ये जो टॉनिक के नाम पे या लिव 52 ये जो है, ये सब लिवर को लॉन्ग टर्म में जाके आपका नुकसान ही करते हैं, कोई फ़ायदा नहीं करते. आपको लिवर को हेल्दी रखना है तो आपको लाइफस्टाइल हेल्दी रखिए. ब्लैक कॉफ़ी पीजिए, आप ग्रीन मतलब कलर्ड वेजिटेबल्स मतलब रॉ फॉर्म में खाइए, पेट भर के खाना, मतलब बेसिकली सब कुछ आपका Right. लाइफस्टाइल से है. बट अलग से कोई ऐसी दवा नहीं आती कि आपको लिवर उसे खाने से लिवर हमारा सेफ रहेगा. हाँ. Okay. बस आप उसको लिवर को ख़राब होने से रोक सकते हैं बाय मॉडिफाइंग योर लाइफस्टाइल. बट देयर इज़ नो ड्रग पर्टिकुलरली दैट इज़ कि हम इसे खाने से कि हमारा लिवर कभी ख़राब नहीं होगा. But I think the one positive side is कि liver को अगर मुझे protected रखना है तो everything is controllable. I know that I can control my lifestyle. I know I have to control my diet. I know I have to control and give enough rest. So end of the day, it is the choices that we make on day-to-day basis. And that's a really changes perspective, because this is not just about one organ. It's the all a- entire metabolic it's- ecosystem. All things of are the body. interconnected. Right. So fatty liver is not an isolated issue. disease. It's a metabolic syndrome. Okay. And I think this is something which is also very less talked about. So we are really glad तभी that इसका we could have नाम ही this चेंज हो गया. पहले इसको कहते थे नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज, अब इसका नाम है मेटाबॉलिक डिसफंक्शन एसोसिएटेड स्टीटोटिक लिवर डिजीज. Oh. इसका टर्मिनोलॉजी ऐसे ही आज Okay. पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिस्टम वो भी इसका पार्ट है, मतलब मेटाबॉलिक सिंड्रोम का. Right. तो उसका भी अब टर्मिनोलॉजी चेंज हो गया. उसको नाम आप कहते हैं PMOS. Okay.
Polyendocrine metabolic syndrome associated ovarian syndrome. Okay. Okay. So, sir, as we come towards the end of this conversation, if you were to give one message to the patients coming to you, because I think you have been seeing day in and day Day out, one message that you would like to give through this platform to the people across the country, what it would be? मैं अपने पेशेंट को एक ही बोलता हूँ, कभी पेट भर के नहीं खाना चाहिए, ब्लैक कॉफ़ी डेली पीनी चाहिए, आपको स्लीप आवर्स पूरा 7 to 8 आवर्स स्लीप प्रॉपर लेनी चाहिए, लेट नाइट मील्स अवॉइड करनी चाहिए, आधे घंटे एटलीस्ट अपनी बॉडी को दीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, दैट्स ऑल. Okay. And I think what you said earlier, इंटरमिटेंट मील्स जो आप बीच में स्नैकिंग करते हैं उसको avoid करना चाहिए. मंचिंग करते रहते हैं उसको स्टॉप करना चाहिए. Very true, very true. So I think all simple but steps which are hard to implement, but एक बार हम लोग करने लगे, हाँ, वो तो so I कोई भी think चीज़, it will हाँ, be, it has to be very sustainable to protect the liver, which is such an important organ of the body. Very true, very true. So, sir, conversations like this, remind us that health is not just about reports and medicines. It is also about awareness, habits, balance, and the choices we repeat every single day. If today's episode made you think differently about your health, do share it with your family and friends, because sometimes one conversation can genuinely change someone's future. So this personally has been very meaningful for me. I am taking a Thanks. couple of messages for my own health and the way I need to follow certain lifestyle patterns. So sir, thank you so much for joining us and sharing such valuable insights in such a simple and a relatable way. I think that is the most important thing. Usually, when we talk to doctors, we always fear that we'll get big jargons, but today was absolutely not the case. You Thanks. made it so simple for layman to understand that what exactly it is, fatty liver, and how it should be taken care of. So don't forget to like, share, and subscribe to the Aska Virtue podcast, and share it with someone who might benefit from this knowledge. Until next time, this is Aska Virtue podcast, where awareness meets action. Thank you so much, sir. Thanks.